Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is community health practice and ethics and behavior related community practice. So basically इसमें हम बात करने वाले हैं ethics and behavior related community practice. So ethics and behavior related community practice in the introduction, the word ethics is derived from Greek word ethos which means custom and guideline. जो वर्ड है ethics वो derived हुआ है ethos वर्ड से जिसका मतलब होता है custom and guidelines या हम कह सकते हैं what is the rules and regulation, and also the ethics is help in the what is right and wrong. So every profession has its own ethical aspects and nursing profession also has ethical aspect which we known as nursing ethics. So हर एक प्रोफेशन में खुद के अपने ethical aspects होते हैं, वैसे नर्सिंग प्रोफेशन में भी ethical aspects हैं जिनको हम नर्सिंग ethics के नाम से जानते हैं. Next one is the meaning. So the word ethics means custom and guidelines and belief in the Greek language. So Greek word से ethos word आया था जिसका मतलब था custom and guideline. So इसके according a person become a member of a profession, he or she accept the responsibility to live up the code of ethics of that profession. So जब भी कोई person है या कोई member है किसी भी profession में जाता है तो पर्टिकुलर उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं. जो भी कोड ऑफ इथिक्स है उनको फॉलो करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है हर एक प्रोफेशन में. सो प्रोफेशनल इथिक्स इन नर्सिंग इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट वन. सो जो प्रोफेशनल इथिक्स इन नर्सिंग है वो बेसिकली हेल्पफुल होता है एंड एज अ सेफ गार्ड काम करता है एवरी एन इंडिविजुअल के लिए. Next one is the definition. So ethics is a living set of value and discipline that is capable of facilitating the organizing the work field. The ethics से क्या है, लिविंग अ सेट ऑफ वैल्यू है या डिसिप्लिन है जो कि एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है थ्रू आउट द फैसिलिटेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क एंड फील्ड. सो द नेशनल Federation of Licensed Practice Nurses NFLPN has developed the code of ethics for nurses. So इन्होंने क्या code of ethics develop किया? First one, human dignity occupies remarkable place in a nursing profession. This should be served without any consideration of caste, color, age and gender. So human dignity जो है is very important for every an individual person के लिए in the nursing profession में, and the nurse is practicing the healthcare services without any consideration of caste and color and age and gender discrimination. So it is very important. Next one is the ethics is important for continuing education, for maintaining commitment, capacity for better practice. So ethics इसलिए भी बहुत important है, डिसिप्लिन कह सकते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या सही है क्या गलत, राइट एंड रॉन्ग एथिक्स में ये हमें सब बताता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू एजुकेशन के लिए ना, ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग द कमिटमेंट ऑफ कैपेसिटी फॉर बेटर practice. Then ethics are necessary to maintain the confidentiality of nurse-patient relationship. So ethics ये भी हमें लर्न कराता है या डिसिप्लिन में रखता है जिससे कि हम किसी भी पर्सन की कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी और पर्सन के साथ हम शेयर नहीं करते हैं. सो एंड इट प्रोटेक्ट द पब्लिक, जिससे जो पर्टिकुलरली क्या हो सकता है कि हम पर्टिकुलर पब्लिक के जो भी बिलीफ है, ट्रस्ट है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द NLFPN developed the code of ethics for nurses. Next one is the International Council for Nurse adopted by INC 1953. जो International Council for Nurses है वो adopted किया गया by INC. जो कोड ऑफ इथिक्स था इन दैट द नर्स हैज फॉर 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो आईएनसी था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस एंड आईएनसी ने जो अडॉप्ट किया कोड ऑफ नर्सिंग, इसके कुछ 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फर्स्ट वन प्रमोट हेल्थ. सो फर्स्ट वन इज द प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंटिंग डिजीज. देन जो भी पर्सन है उनकी जो भी लोग हैं बीमारी को क्या करना, उनकी प्रिवेंट करना, मेंटेनिंग हेल्थ एंड टू रिड्यूस द पेशेंट suffering. Next one is the what is the role of and responsibility of nurse and society on the basis of ethical responsibility. So the nurse primarily responsibility is to those who need care. So nurse की primary responsibility है कि वो care provide कराए जिसको भी need है.
and the nurse maintain a environment that include the rights, value, caste, religion, each individual, family and community. So जो nurse है वो maintain करे एक ऐसा environment जिसमें हर एक individual के rights को fulfill करे, साथ ही साथ उसकी value को value दे, and caste and religion of each individual and family and community को value दे, साथ ही साथ without any discrimination उसको care provide करे. Next one, the nurse ensure that the person being cared for has access to information. एंड वो भी नर्स का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन जिसको भी केयर दी जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे या उसको सभी इंफॉर्मेशन जो है पेशेंट से रिगार्डिंग केयर से रिगार्डिंग मिलनी चाहिए. देन नर्स कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल. एंड नर्स का नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नर्स है वो जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास तक अपने तक ही रखे, दूसरों के साथ शेयर ना करे. द नर्स वर्क विद द सोसाइटी टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड ऑफ पब्लिक. सो नर्स जो है वो वर्क करती है विद द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ मिलके काम करती है फॉर हेल्थ रिलेटेड, जिससे सोशल नीड जो है पब्लिक को मिल सके. The nurse is able to protect the pollution and natural environment. Nurse also is play a responsible role and in for to protecting the natural environment. Next one is the nurse and practice. In the nurse and practice, the nurse also has a passion for nursing practice, which maintain her ability to continuously learn. So, अगर हम as a nurse, if we are providing the care, तो हमें regular continue education पे focus करना होगा. सो ये एक हमारा पैशन होना चाहिए कि हमें रेगुलर लर्न करना चाहिए, गो थ्रू जाना चाहिए न्यू टॉपिक्स या न्यू चीजों के साथ. द नर्स डज नॉट compromise on health to take care of the patient. एंड एक नर्स एक ऐसी प्रैक्टिस करती है कि जिससे वो सी एंड ही डज नॉट compromise ऑन द हेल्थ ऑफ टेक केयर ऑफ द पेशेंट. पेशेंट के हेल्थ के साथ कोई compromise नहीं करती है. द नर्स पे स्पेशल अटेंशन टू पर्सनल कैपेसिटी व्हाइल टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर नर्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किसी भी पर्सन की केयर करने की या पेशेंट को ट्रीटमेंट की केयर प्रोवाइड करने की, तो वो प्रॉपर अटेंशन फुल अटेंशन पे करती है जितना भी उसके पर्सनल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग. द नर्स ऑलवेज टेक केयर ऑफ ऑल द एथिकल स्टैंडर्ड रिलेटेड टू हर प्रोफेशन. और नर्स को हमेशा टेक केयर करनी होगी ऑल सभी एथिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करना होगा या फॉलो करना होगा एथिकल्स एंड मोरल वैल्यूज को देखते हुए अपने प्रोफेशन में. द नर्स एंड प्रोफेशन. एज ए नर्स एंड प्रोफेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स को, नर्स इज अ प्ले आर रोल इन इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस मैनेजमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन. सो नर्स एक ऐसा एक मेजर रोल प्ले करती है इम्प्लीमेंटिंग द एक्सेप्टेड रूल्स. जो भी उसने रूल्स को एक्सेप्ट किया उसको इम्प्लीमेंट करती है नर्सिंग प्रैक्टिस में, मैनेजमेंट में, रिसर्च में, साथ ही साथ एजुकेशन में. द नर्स प्ले एन एक्टिव रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ professional knowledge. Nurse also play a active role in the development of professional knowledge. The nurse should have ability to maintain the social economic coordination in the nursing profession. And nurse के पास also the nurse have ability to maintain the social साथ ही साथ economical coordination in a nursing profession. The next one is the nurse and paramedics. So nurse and paramedics, the nurse have cooperate the relationship with the colleagues in a nursing and other fields. So nurse एक ऐसा as a role. Next one, the code of ethics for nurses in India. So first one is the nurse attention to individual. So nurse every individual पे attention करेगी करती है. Then the nurse respect the rights of patient and take the cooperation from him to solve his problem. So nurse को respect करनी चाहिए every individual patient के जो भी rights हैं एंड उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. देन मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी. सो नर्स शुड आल्सो मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी कि ही एंड शी मस्ट नॉट बी शेयर एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन. देन नर्स शुड हैव फुल कैपेसिटी टू केयर ऑफ द पेशेंट. एंड नर्स जो है फुल कैपेसिटी को अपनी कैपेसिटी को यूज करके पेशेंट की केयर करनी चाहिए. देन परफॉर्मिंग वर्क विथ एथिकल एंड लीगल बाउंड्री. जो भी वर्क परफॉर्म करना है या भी जो भी टास्क फुलफिल करना है वो पर्टिकुलर एथिकल बाउंड्रीज या लीगल बाउंड्रीज के अंदर करना है. देन वर्किंग क्लोजली विद द मेंबर ऑफ हेल्थ टीम. जो भी हेल्थ टीम के मेंबर हैं उनके साथ क्लोज में काम करना, साथ ही साथ कॉपरेशन के साथ काम करना है लाइक अदर पैरामेडिक्स के साथ या अदर डिपार्टमेंट्स के साथ. नेक्स्ट वन, टू मेंटेन अ हेल्थी ट्रस्ट इन द सोसाइटी बाय अ नर्स.
So nurse also should need to maintain a healthy trust in the society. So thank you for watching my video. मिलते हैं next video.